क्लास स्क्रीन विजिबल है। Yes, sir. ओके, so today we will discuss opinion essay, and further we also discuss discussion essay. Basically, there are four type of essay in task 2. First one is opinion, second one is discussion. These are two both important essay, but we should also know about our type of essay, advantages, disadvantages, and solution essay. So first we will discuss opinion essay. In opinion essay, you are asked to give your opinion on a particular topic. The essay requires you to state your viewpoint clearly and support it with reason, example, and argument. In this type of essay, you are expected to express whether you agree or disagree with the given statement or question or justify your position. Mean when you start practice or when you write a discussion essay, you need to give your clear opinion. Do you agree or disagree or partially agree? Key points of an IELTS opinion essay. The first one is clear opinion. You must clearly express your opinion whether you agree, disagree, or partly agree with the statement. Second is supporting argument. Provide logical reason and example to support your opinion. And third point is that balanced structure. Organize the essay with an introduction, body paragraph that each present a single idea supporting your opinion, and a conclusion. Last and important point is that formal tone. Use formal language and avoid colloquial expressions. The goal is to demonstrate your ability to construct a well or good response and to showcase your language proficiency. Sketch of an opinion essay. The first thing is that you should write introduction, then body paragraph 1, body paragraph 2, body paragraph 3, and conclusion. But I would like to suggest you just focus on, you should just focus on two body paragraph, because the paragraph mean not just to write topic sentence. It's mean you first write topic sentence and then explain and give a relevant example to that topic sentence, so then your paragraph will be considered more uh, positive. Otherwise, if you just try to write three body paragraphs, so you cannot completely develop all three different idea in each body paragraph. So first, in introduction, paraphrase the question topic and state your clear opinion. Do you agree, disagree, or partly agree? So in the first body paragraph, present your first reason argument supporting your opinion, then provide example and explain your point. So in the second body paragraph, you can also give a second point that support your opinion. For example, if you agree, so in the first paragraph, you can give a relevant sentence that support your side, and in the second body paragraph, you can again write one more sentence that support your opinion. And in the second paragraph, present your second reason argument, provide another example and explanation. And in the fourth body paragraph, acknowledge the opposing viewpoint and explain why this viewpoint is less convincing or weaker than your own opinion. For example, if you just write two body paragraphs, so my suggestion is that
In the second body paragraph, first just write opposing viewpoint. Mean in the we can say if you just write two body paragraph, mean in the first body paragraph you can write your topic sentence and then extend that sentence with example and explanation. And second, when you write second body paragraph, just write one opposing viewpoint, and then after in the second sentence refute that sentence. Actually you write opposing sentence in the second paragraph, and then further discuss why you do not agree with this point. So you can extend that point in a further explanation and further example. So if you just focus on two body paragraphs, so you can easily uh, discuss each point in a detail. If you just try to write a three paragraph, if your typing speed is a good, so you can easily write three body paragraph. But if your typing speed is normal, so I would like to suggest just focus on two body paragraph. In the first body paragraph, give first reason and explain and give the example relevant to your topic sentence. And in the body paragraph, first sentence write about opposing viewpoint, and then refute that opposing viewpoint with your uh, own point and explain with the reason and example. So in conclusion, summarize your opinion, reiterate the main point briefly. In this structure, you present your opinion, support with reason, acknowledge the opposing point. So this one is separate. Mean in the whole essay, you present your opinion, support with reason, acknowledge the opposing view, and then demonstrate why your opinion is stronger. Tips for writing an 8 band or higher opinion essay. The first thing is that clarity and precision. Use clear and direct language and avoid ambiguity. The second is coherence and cohesion. Ensure that your ideas are well organized and link logically with appropriate transition word. Furthermore, however, in contrast, third point is that complex sentence and vocabulary. Use a variety of sentence structure, compound and complex sentence, and precise vocabulary to demonstrate your grammatical range and lexical resources. Balance argument while you acknowledge the opposing viewpoint. Ensure that your opinion remain the focus of the essay, that your reason and example are strong enough to outweigh the counter argument. Mean when you acknowledge the oppose, opposing viewpoint in the second paragraph, then you should be more focused on your argument and your opinion that actually show that your opinion is more stronger than the opposing viewpoint. The opinion essay is assessed based on four criteria. The first one is that your task response, how well you address the question and present a clear and fully developed opinion. Mean if you just write one sentence, topic sentence, and do not explain and do not give the relevant information, a relevant example to that sentence, and just focus to write an other sentence. So in that scenario, your point cannot be fully developed. So it's mean which topic sentence you select to write, then explain further and give the relevant example to that point. You should answer all part of the question, explain your viewpoint in detail and provide stronger reason and example. Second is coherence and cohesion, the logical organization of your ideas and how effectively they are linked. For example, what you write, everything show a clarity and engagement with the sentence.
So if you write with the engagement, so then your band score will also improve rather than uh, when you read after writing your own essay and you cannot find any engagement in your essay. So it's mean you do not fulfill this point, coherence and cohesion. And for example, if you write everything in a one paragraph, mean you write introduction, body paragraph, and you just considered one paragraph and write everything. So in that case, you cannot fulfill this second point. So it is important to write separate paragraph like introduction in first paragraph and then second body paragraph in further two paragraph and conclusion will also in a separate paragraph. Use of clear paragraphing, appropriate transition word and connection between sentence to create a smooth flow of ideas. And the third point is that lexical resources, the range and accuracy of vocabulary used in the essay. You should demonstrate variety in your word choice, avoid repetition, and use topic specific vocabulary correctly. Grammatical range and accuracy. Variety and accuracy of your sentence structure. You should use a mix of simple, compound, and complex sentence with minimum errors in grammar and punctuation and spelling. So here some important topic of essay. So here I just write important topic relevant to opinion essay, and then I write some further point that show agreement and disagreement to that point. For example, education. So the question can become and question can be relevant to education in that way. For example, do you agree or disagree that student should focus on academic subject rather than vocational training? Mean if you agree with this point, you can write your topic sentence like academic subject provide essential knowledge for higher education and critical thinking. They prepare student for future career in diverse field. And if you disagree, so you can use a different sentence and a different way to show your opinion. Vocational training equips students with practical skill and make them job ready, especially in field where technical skill are more valued than academic qualification. So you can read all these important topic. I will also share on the Slack, so you can just read. Mean when you read something, then you actually understand how you can write. For example, many students face problem uh, because they cannot develop ideas. So for that student, they should be try to read band 7 8 essay and then try to uh, paraphrase and rephrase that essay in their own language, so then they can easily develop new ideas. If anyone cannot develop critical and logical ideas, so for that student they should definitely read first to the band 7 and 8 essay, and then they should try to rephrase that essay in their own language. So I will share this file so you can read some important topic related to opinion essay and the point that show your position. Okay. So here we select a one opinion essay, and we will read how we can write and how we can manage different paragraph in the essay. That thing actually help you to understand how we can write opinion essay. So if student you have any question relevant to our previous discussion, so you can ask, so then we will discuss it.
Okay. The first is your question. As well as making money, businesses also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree? So your opinion should be clear. Agree or disagree or partly agree. If you uh, do not show your agreement, for example, in the first body paragraph, you start your sentence that agree with the question, and in the second, you start your sentence that actually against your first sentence that you write in a paragraph one. So your opinion and your side should be clear. So, first, in the introduction, you need to paraphrase your statement. As well as making money, businesses also have social responsibility. So, first, you need to paraphrase it. In today's competitive world, businesses are mainly established to generate profit. However, it is often argued that companies should also be responsible for social and environmental issues. So, this is your question of opinion essay. You just paraphrase it, and second, you give your thesis statement, your opinion, and your opinion should be clear. I strongly agree with this view because businesses have powerful influence on society and their action can affect people's lives in many ways. So you clearly write your introduction, and now in the body paragraph, first you need to write your topic sentence and then explain, and after that give a relevant example or reason relevant to your topic sentence. Firstly, businesses depend heavily on society for their success, which makes social responsibility essential. Companies rely on employees, customer, and public infrastructure to operate efficiently. Therefore, they should give back to society by providing their wages, safe working condition, and equal opportunity. When businesses treat their worker ethically, and employees' satisfaction and productivity tend to increase, which can lead to long-term financial success. This shows that social responsibility and profitability are not opposing goals but can support each other. So in the second body paragraph, what you need and what I write here, I write first opposing viewpoint and then I refute in a further sentences. Some people argue that the main responsibility of businesses is to make money and that social problem should be handled by government. However, this view is limited because companies often have greater resources and direct influence than governments. In reality, many industries contribute to environmental pollution and social inequity through their operation. For this reason, businesses should take responsibility by reducing waste, lowering carbon emission, and supporting local communities. Such action not only protect society and the environment but also improve company public and image and attract socially conscious customer. So you write your introduction, first body paragraph, second body paragraph. So then in conclusion, you just need to describe what you write in the first paragraph, second, and then your opinion. And your opinion in the conclusion should be clear. In conclusion, although making profit is an important objective for businesses, I believe that they also have significant social responsibility by contributing positively to society and protecting the environment. Companies can achieve sustainable growth while benefiting the wider community. So you can use this approach to write your opinion essay. I personally do not like to share the template for opinion essay, but if some student uh, uh, feel it is a benefit for them, so here is also a template for opinion essay.
they can understand it and use some important phrases rather than to use everything in their actual test. Yes, some important phrases you can use in your essay, but do not rely completely on any specific template. Okay, so I will also shares a quiz on the Slack, and tomorrow I will discuss one of the essay if any student share after writing on a Slack. So if any question if any student you have any question relevant to opinion essay, so you can discuss. Otherwise, we will go toward discussion essay. Okay. Yes, ma'am. Sabah, are you here? Yes, sir, I am present. Okay, ma'am. Now you can share your screen. Okay, sir. सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. ओके ओके अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट. Sir, I am audible? Yes, ma'am. Okay. Now I start the lecture. आज हम डिस्कशन बेस ऐसे पे बात करेंगे. जैसे अभी आपको प्रीवियस सर पढ़ा के हटे हैं एग्री डिसएग्री एडवांटेज डिसएडवांटेज ओपिनियन बेस लाइक या फिर डिस्कशन बेस ऐसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि आपको ऐसे कौन सी टाइप का दिया जा रहा है. तो इसका सिंपल सा आंसर मैं ये दूंगी कि आप जब भी कोई स्टेटमेंट आपको आती है आप उसका लास्ट में देखें. लास्ट में देखेंगे तो आपको या तो वो एक्सप्लेन कर रहा होगा यानी कि जो आपसे पूछने वाला एग्जामिनर कह लें या कुछ भी जिसने आपको दिया एग्री या डिसएग्री पे वो बात कर रहा होगा. या कह सकता है कि टू एक्सटेंट एग्री है और डिसएग्री, या फिर ये कह सकता है आपको कि आप ओपिनियन दें इस चीज पे. सिंपल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो यही बोलेगा. और साथ में अगर वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका देगा तो ये भी मेंशन किया होगा. लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है डिस्कशन ऐसे पे आके, क्योंकि वो ये चीज को क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि ये किस टाइप का जो है ना ऐसे है. तो यहाँ पे ना डिस्कशन ऐसे जो होता है ना इसमें आपने 2 रीजन देनी होती है. यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डिस्कशन ऐसे होते हैं वो किसी भी टॉपिक पे लाइक हमें कोई भी टॉपिक दिया हो तो उस पे आपने 2 साइड्स को डिस्कस करना होता है. लाइक आपने एज अ उसको सपोर्ट भी करना है लेकिन उसके अपोज भी चलना है. आप उसको जो है आपने उसके सपोर्टिव भी खड़े होना है और आपने उसके ऑपोजिट भी चलना है. इसमें आपने 2 रीजन देनी होती है. ठीक है. फिर आप जो है ना उसके बाद आपने अपना पर्सनल ओपिनियन देना होता है. लाइक अगर आप हम यहाँ पे देखें लेट्स सी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ डिस्कशन ऐसे. तो आप सेंटेंस 1 में देखें कि आपने आपको जो स्टेटमेंट दी जाएगी आपने उसको पैराफ्रेज करना है. सिंपल फर्स्ट फोकस आप लोगों ने पैराफ्रेज पे करना है, क्योंकि हमेशा ऐसे का जो मेन बॉडी पैराग्राफ जो होता है ना वो आपका इंट्रो और आउट्रो होता है. और अगर आपने इंट्रो और आउट्रो ठीक कर लिया
तो बॉडी लिखना, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 लिखना कोई मुश्किल नहीं है। तो मेन फोकस जो है ना, आपने उसका इंट्रो और आउट्रो पे देना है। तो आपने क्या करना है कि वर्डिंग वही होगी, जस्ट आपने उसको पैराफ्रेज कर देना, उसकी वर्डिंग चेंज कर देनी है, मीनिंग वही है, ठीक है उस चीज का। लाइक आपने यहाँ पे लिखा है जैसे सेंटेंस 1 पैराग्राफ द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गिविंग द गिवन इन द टॉपिक, यानी कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया होगा आपने उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो भी है उसको आपने पैराफ्रेज कर देना है। अब सेंटेंस 2 पे चलते हैं। तो राइट अ थीसिस स्टेटमेंट सेइंग दैट वी विल डिस्कस बोथ साइड ऑफ एन आर्गुमेंट। आपने क्या करना है कि उस पे एक लाइक एज अ थीसिस स्टेटमेंट देनी है। आप कह सकते हैं कि वी विल डिस्कस अबाउट, या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एज अ पॉजिटिव या नेगेटिव वे से आप बताएं, या फिर ये भी आपसे वर्डिंग को चूज कर सकता है, यू विल डिस्कस बोथ साइड ऑफ द आर्गुमेंट। तो इस चीज से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो डिस्कशन बेस ऐसे है। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर देख लें, पहले आपको इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ सेकंड, और उसके बाद कंक्लूजन। तो हम फोकस जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे करेंगे। देन अगर हमारे पास टाइम बचा तो इंशाल्लाह फिर हम जो है उसके बॉडी पैराग्राफ को भी लेके चलेंगे, ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ। लाइक ये देखें, आपके पास अब ये है, चिल्ड्रन आर फेसिंग मोर प्रेशर नाउ डेज फ्रॉम एकेडमिक सोशल एंड कमर्शियल परस्पेक्टिव, व्हाट आर द cause of this pressure and what measures should be taken to reduce their pressure। अब यहाँ पे भी मोस्टली स्टूडेंट्स को इशू होगा कि अब ये किस टाइप का ऐसे है, लाइक एज अ इसमें अपने कोई ना कोई वजूहात बतानी है, लाइक ये ओपिनियन बेस्ड ऐसे है, ठीक है। ये चीज से आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे, एक मिनट, ओके, ये देखें, अगर शायद हाईलाइट हो रहा हो तो, कॉज ऑफ दिस प्रेशर, आपने इसकी जो वजूहात बतानी, इससे आपको पता चलेगा। अगर आप नेक्स्ट मूव करते हैं कि सम पीपल बिलीव यू शुड कीप ऑल द मनी दे हैव अर्न एंड शुड नॉट पे टैक्स टू द स्टेट। आपको ये स्टेटमेंट समझ आ रही है? लास्ट पे उसने मेंशन किया है कि डू यू एग्री और डिसएग्री। तो आपको यहाँ पे आप जब भी अपने स्टेटमेंट के लास्ट पे देखेंगे तो आपको मेंशन किया होगा कि वो एग्री और डिसएग्री, या आपने इसमें जस्ट सिंपल एग्री या डिसएग्री के बारे में बताएंगे। अगर आप उसके नेक्स्ट चलते हैं, लाइक इसके लास्ट पे देखते हैं, डिस्कस ऑन बोथ साइड एंड गिव योर ओपिनियन। अभी जैसे मैं बता के हटी हूँ कि जो डिस्कशन बेस ऐसे होते हैं ना, उनके लास्ट पे या तो वो आपको ऐसे बोल देगा डिस्कस ऑन बोथ साइड एंड गिव योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन दे, आप दोनों साइड्स को लेके चल रहे हैं, यानी कि एक पॉजिटिव साइड को भी लेके चलना है, आपने एक नेगेटिव साइड को भी लेके चलना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा जो है डिस्कशन बेस ऐसे है। स्टूडेंट क्लियर है आपको ये चीज? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये 4 वाली स्टेट में भी देखें, लास्ट पे ये लिखा हुआ यू एग्री और डिसएग्री, क्लियर है। और अब यहाँ पे ये जो है दिया हुआ, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन आर गिवन मोर फ्रीडम देन इन द पास्ट, इन दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आपको पता चला इन द पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी पीछे जो भी हम पढ़ के आए थे उसमें आपको लिखा हुआ था बोथ ऑफ समथिंग लिखा हुआ था, उससे भी आपको पता चलना चाहिए कि दोनों साइड आपने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे उसने और एक्सप्लेन कर दिया, या इस तरीके से भी हो सकता है, इन दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट। आप उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट के बारे में भी बताओ और आप उसका नेगेटिव डेवलपमेंट के बारे में भी बताओ, ठीक है। होप सो कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी। चले जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारी मेरी स्टेटमेंट है, मैं उसको रीड कर रही हूँ। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप बहुत सारे हिस्सों को देखा जाए ऑफ द वर्ल्ड, वर्ड को, अब यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये वर्ड का वर्ड, इसको एज अ कंट्री कह सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप बहुत सारी कंट्रीज में देखें या वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे जो हिस्सों में चिल्ड्रन आर गिवन मोर फ्रीडम देन इन द पास्ट, पास्ट की निस्बत चिल्ड्रन को क्या है, ज्यादा आजादी दी जा रही है। यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इन दिस पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, अब आपने इसमें क्या करना है, आपके पॉजिटिव और आपने नेगेटिव दोनों आपने जो है ना साइड को लेके चलना है। लेकिन स्टूडेंट को यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको स्टोरी जनरेशन करनी नहीं आ रही होती है। स्टेटमेंट अगर आपको दी गई है, अब आप फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे चिल्ड्रन को फ्रीडम के बारे में बात की जा रही है।
मुझे अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, मैं क्या करूँगी? तो मैं सबसे ज़्यादा जो मेन फ़ोकस वाला जो पॉइंट है, मैं ये देख रही हूँ कि मुझे इस पूरी स्टेटमेंट में से अगर फ्रीडम नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मैं ये चीज़ को चेक करने के लिए मैं क्या बना सकती हूँ कि इससे मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कह सकते हैं, चिल्ड्रन कह सकते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है। अपना ओपिनियन ही आपने देना है ना, तो या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टडी या फिर करियर चॉइस के बारे में भी फ्रीडम हो सकती है, या आप ये भी कह सकते हो कि डेली रूटीन या फिर यूज़ ऑफ मोबाइल या इंटरनेट या फिर सोशल ऑफ लाइफ, किसी चीज़ के बारे में भी जो है ना फ्रीडम मिल सकती है चिल्ड्रन को। ठीक है? आपने अपनी स्टोरी को जनरेट करना है कि मुझे अपने ऐसे में लिखना है, तो मैं किस चीज़ के बारे में लेके चलूँगी। ठीक है? ये लेके चलूँगा। तो इसका जो सिंपल सा फ़ॉर्मूला वो यही है कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होंगे, चॉइस प्लस इंडिपेंडेंट इज़ इक्वल टू फ्रीडम। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब मैं और आपको सिंपल वे में बताती हूँ। अगर आप पास्ट में देखें, यहाँ पे पास्ट की बात की है ना, अगर आप पास्ट में देखें या प्रेज़ेंट में बात कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल ये प्रेज़ेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन आप वो पास्ट की निस्बत ये बात करें कि पास्ट में क्या था, प्रेज़ेंट में क्या था। अगर ये भी दोनों कंपैरिज़न आपको क्लियर हो जाए, आपको और भी बताने में आसानी हो जाएगी। मैं कहूँगी कि पास्ट में सबसे पहले जो पेरेंट्स थे, अगर पास्ट में देखे जाए, तो वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एज़ कम्पेयर टू प्रेज़ेंट, क्योंकि प्रेज़ेंट अब जो ज़्यादा है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं अपने चिल्ड्रन के हवाले से, क्योंकि वो चिल्ड्रन को आज़ादी दे रहे हैं अब। अगर आप पास्ट में देखते हैं, तो वो उनके पास सिर्फ़ लिमिटेड चॉइस थी। उनकी सारी की सारी लाइफ़ कंट्रोल्ड लाइफ़ थी। लेकिन अब अगर आप एज़ प्रेज़ेंट में देखते हो कि अब स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा चॉइस है, चिल्ड्रन के पास वो इंडिपेंडेंट लाइफ़ जो है अपनी गुज़ार रहे हैं। अगर आप अब देखते हैं कि एवरी पर्सन देखें अपनी लाइफ़ में, तो वो इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा है। अगर आप ये पिछली लाइफ़ को देख रहे हो, तो वो सारे के सारे जैसे पेरेंट्स ने कह दिया, वो एज़ इट इज़ वैसे ही चलते थे। तो ये होती है, आपने इसको थोड़ा-सा ना आपने इस चीज़ को समझना है, फिर आपने इफ़ेक्ट देखना है कि चिल्ड्रन की यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, चिल्ड्रन की यहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, उसका बिहेवियर, उसका एजुकेशन, उसकी सोसाइटी, उसका फ्यूचर लाइफ़, ये चीज़ को आप लोग समझना है। अगर ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी, आप ईज़िली जो है अपना एसे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर फ्रीडम आ गई, फ्रीडम के बाद स्टूडेंट के पास या चिल्ड्रन के पास क्या आती है? स्किल आती है, अगर एज़ मैं पॉज़िटिव वे से मैं देखूँ तो। फिर उनके पास क्या आएगा नेक्स्ट कि उनका जो फ्यूचर है वो बेटर हो जाएगा। तो ये आप अपने पॉज़िटिव आइडियाज़ में बता सकते हो, ठीक है? पॉज़िटिव आइडियाज़ में कैसे आप अपनी स्टोरी जनरेट करोगे कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा सिंपल। कॉन्फिडेंस से क्या समझ आती है कि चिल्ड्रन ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपने डिसीज़न जो है वो खुद ले सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेंगे। ऐज़ कह सकती हूँ कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उनके अंदर वो डेवलप हो सकता है। और अगर आप इंडिपेंडेंट की बात करते हो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में, तो जो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वो प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेंगे, वो खुद सीखेंगे, ठीक है? उनके अंदर क्रिएटिविटी जो है ना वो इम्प्रूव होगी। अगर आप कहती हूँ मैं बेटर कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ओपिनियन एक्सप्रेस उनको करना खुद से आ जाएगा, कि वो कैसे अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वो कैसे वो लीडरशिप की क्वालिटी को जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? इससे जो है ना उनका फ्यूचर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब मुझे ये बताएँ कि जो-जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, ये किस वे में लेके जा रही हैं? कोई बताएगा मुझे कि ये मेरा पॉजिटिव वे में लेके जा रही हूँ या मैं नेगेटिव वे में लेके जा रही हूँ? कोई स्टूडेंट बताएगा? ये सारी बातें जो है ना, ये एज़ पॉज़िटिव वे को लेके जा रही हैं, मैं जिस बारे में आपसे बात कर रही हूँ। अभी तो मैंने नेगेटिव जो है डेवलपमेंट के बारे में बात की ही नहीं है आपसे। तो ऐसे आप अपनी स्टोरी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव इफ़ेक्ट में देखें, तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप किसी चिल्ड्रन को टू मच फ्रीडम दे देते हो, उसके पास वो क्या होगा, वो नॉट कंट्रोल हो जाएगा बच्चा आपके पास, और फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है ना लैक ऑफ डिसिप्लिन हो सकता है, उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी आ सकती है, रूल्स फॉलो नहीं वो करेगा सबसे पहले, यही चीज़ आएगा ना, वो रिस्पेक्ट कम कर देगा,
रॉन्ग डिसीजन लेगा, इमेच्योरिटी की वजह से वो गलत डिसीजन लेगा, फिर उसकी स्टडी जो है वो इग्नोर कर सकता है। तो बैड इन्फ्लुएंस पैदा हो सकता है, लाइक सोशल मीडिया का वो मिसयूज कर सकता है, लाइक एज अ पीयर प्रेशर, कुछ भी। तो ये सारी चीजें जो है ना नेगेटिव वे को लेके जा रही हैं। तो मेरा समझाने का सिर्फ मकसद यही है कि अगर आप गाइडेंस प्लस फ्रीडम करते हैं तो आप एज अ पॉजिटिव वे में जाएंगे। अगर आप जो गाइडेंस को निग्लेक्ट करेंगे तो वो टोटली जो आपकी ओपिनियन है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जब भी आप किसी बच्चे को फ्रीडम दे रहे हैं तो उसको गाइडेंस भी ज़रूर दें। पेरेंट्स को जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए कि जो वो फ्रीडम दे रहे हैं तो साथ में गाइडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप गाइडेंस नहीं दे रहे, गाइडेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो देन वो क्या है, वो टोटली वो नेगेटिव साइड को जाएगा। दैट्स क्लियर? लाइक ये तो हो गया मेरा आपको स्टोरी बताने का। अगर मैं इसके कंक्लूजन पे बारे में आती हूँ, लाइक मैं उसको पॉजिटिव वे में मैं कैसे उसका कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, या फिर मैं नेगेटिव वे में कैसे कंक्लूजन निकाल सकती हूँ। सिंपल, ये इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन आर गिवन मोर फ्रीडम देन इन द पास्ट इन दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट। मैं उसको एज अ लेके सर मैं उसको सम अप करूँ तो मैं उसको सिंपल ये कह सकती हूँ, ओवरऑल ऑल्दो गिविंग चिल्ड्रन, लाइक जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको नीचे शो करती हूँ। लाइक यहाँ पे दिया टू सम अप लिख लें, टू इन कंक्लूजन लिख लें, ओवरऑल लिख लें। आपको ये इससे क्या है, वोकैबुलरी जो है ना वो आपने चेंज करनी है। आप सिर्फ एक या दो वर्ड जो है वो लिख सकते हैं सेम, बट उसको आप ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, इससे आपके बैंड कम होंगे। और इट कैन बी रिट्रेटेड दैट फ्रीडम, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ये दोहराया जाता है, द फ्रीडम एंजॉय बाय चिल्ड्रन इज बाय and large a good thing by the onus is on the parents to prepare them of these small steps, so the negative side of this access freedom does not go against them। तो अगर आप ये वाला ओपिनियन देखें, ये वाला कंक्लूजन देखें, ये सिंपल अपने वर्ड्स में बता दें कि although giving children more freedom can cause some problems, it is generally a positive development if parents provide proper guidance। अगर पेरेंट्स प्रॉपर गाइडेंस देंगे तो चिल्ड्रन जो है उसको वो ज्यादा से ज्यादा वो फ्रीडम तो उसको मिलेगी, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप नेगेटिव में लेके जा रहे हो तो इन कंक्लूजन गिवन एक्सप्रेस एक्सेसिव फ्रीडम टू चिल्ड्रन विदाउट कंट्रोल इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट एज इट कैन लीड टू अ पुअर बिहेवियर एंड रॉन्ग लाइफ चॉइसेस। तो होप सो कि आपको स्टोरीज मेकिंग में काफी समझ आई होगी। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंट्रोडक्शन और आउटरो पे जो है ना फोकस करते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन आर गिवन मोर फ्रीडम देन इन द पास्ट इन दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो हम सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हमने पैराफ्रेज करनी है। लाइक यहाँ पे क्या दिया हुआ, द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट एंड सो और द रूल्स and the norms of society when grown ups today compare their childhood with that of today children, they find that today children have more freedom than what they used to have। I believe this situation is largely positive। ये तो इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी देख सकते हैं। आप सिंपल अपनी वर्डिंग यूज करें, आप उसको कह सकते हो, नाउ अ डेज चिल्ड्रन इन मैनी कंट्री are given more freedom than in the past। Some people believe this a positive development while other think it was a negative effect। This essay will discuss both views। आपने जस्ट टू स्टेटमेंट, टू व्यूज देने हैं आपने इसमें। एक तो आपकी ये एक लाइन तो आपकी ये, उसके साथ दो व्यूज और दे दें। लाइक आपको उसको इंट्रो जब आपने लिखना है उसकी 3 to 4 लाइंस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इससे ना कम हो, इससे ना ज्यादा हो। अगर हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन चिल्ड्रन टूडे इंजॉय greater independence in many parts of the world। This change has created debate about whether such freedom is beneficial or harmful। This essay will examine both sides of the issue। ठीक है, तो आपने जस्ट और जस्ट ओनली 3 to 4 लाइंस आपने इंट्रोडक्शन के लिए लिखनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? रिस्पॉन्स तो करें।
जी मैम, समझ आ रही है हमें। जी जी, तो आप वर्ड को एज अ कंट्री यूज कर लो, उसके पैराफ्रेज कर लो। चिल्ड्रन आर गिवन मोर फ्रीडम, फ्रीडम का आप पैराफ्रेज कर लो। पास्ट को कह सकते हैं इन रिसेंटली ईयर्स, या कुछ भी एज एज कम्पेयर टू आप अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कह सकते हैं। इन दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट, तो आप इसको सिंपल कह सकते हो कि this change has created debate about whether such freedom is very beneficial or harmful। ठीक है, आप ऐसे इसको अपनी वर्डिंग में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हूबहू यही चीज लिखें, आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखें। इंट्रोडक्शन की आपको समझ आई है? नाउ वी मूव द कंक्लूजन। अब यहाँ पे कंक्लूजन की साइड पे आए। टू सम अप, इट कैन बी reiterated that freedom enjoyed by children is by and large a good thing, but the onus is on the parents to prepare them for this in small steps so that the negative side of this excess freedom does not go against them। आपने सम अप करना है, आपके पास जो ऐसे है उसको आपने उसकी समरी लिखनी है कंक्लूजन में। जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है वो आपने इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट दी जा रही है, यानी कि आपको जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसको आपने पैराफ्रेज करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। लेकिन आपने पूरे जो आपने ऐसे लिखना उसका जो आपने सम अप करना है, उसका आपने कंक्लूजन लिखना है, अपने ओवरऑल लिखना है, वो आपका कंक्लूजन या आप उसको कह सकते हैं कि आउटरो आपका सिंपल होगा। ठीक है, मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ अपने वर्डिंग में। अगर मैं कहूँ टू सम अप इन कंक्लूजन, इट कैन बी रीड, अगर उसको दोहराया जा रहा है, दैट फ्रीडम इंजॉय बाय चिल्ड्रन, के जो बच्चों को आजादी वो इंजॉय वो करते हैं बाय चिल्ड्रन, इट्स बाय एंड लार्ज एंड अ गुड थिंग्स। तो मैं इसको अपने वर्डिंग में भी कह सकती हूँ कि ऑल्दो गिविंग चिल्ड्रन मोर फ्रीडम हैज मेनी एडवांटेजेस, बट द onus इज ऑन द पेरेंट्स टू प्रिपेयर देम फॉर दिस स्मॉल स्टेप्स। तो मैं उसको ये भी कह सकती हूँ, इट कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट इफ नॉट प्रॉपरली गाइडेड, so that is the negative side of this excess freedom does not go against them। तो मैं इसको अपने वर्डिंग में लिखूं, it can also have negative effect if not properly guided, therefore parents should give freedom gradually while providing sports and supervision। आप सिंपल उसको ये भी कह सकते हो। अंडरस्टैंड? यस मैम। चलें, ओके, हम अपनी बॉडी की साइड पे चलते हैं। ओके, बॉडी पैराग्राफ में यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2। मोस्टली हम ऐसे में जब लिखते हैं ना, बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 ही लिख रहे होते हैं, और यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको कितने वर्ड्स तक लेके जा सकते हो। ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 270 वर्ड्स लिखें, क्योंकि आप ज्यादा लिखेंगे तो मिस्टेक करेंगे। ठीक है, आपको 250 वर्ड अगर आप कंप्लीट कर रहे हो ऐसे में तो वेल एंड गुड है। और अगर आपको ज्यादा आ रहा है लेकिन आपकी सेंटेंस मिस्टेक हो रही है, तो फिर उसका जो है ना, उससे बैंड आपके जो है वो कम होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। इसमें आपने एक पॉजिटिव व्यू देना है और आपने एक नेगेटिव व्यू देना है कि पॉजिटिव व्यू से क्या हो सकता है और नेगेटिव व्यू से आपको क्या हो सकता है। बॉडी पैराग्राफ जो होती है ना, वो यही चीज होती है, आपने उसके अंदर डिस्कशन करनी होती है कि पॉजिटिव व्यू से जो है वो क्या इफेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव से वो क्या इफेक्ट हो सकते हैं, फिर देन उसका सम अप करना है, उनका कंक्लूजन लिख के, दैट्स इट। और आपने इसमें अपना टाइम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बॉडी जो टास्क 2 है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है एज कंपेयर टू टास्क 1 के, क्योंकि उसमें हमें इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जो टास्क 2 है उसे हमें पहले करना चाहिए, और विद इन इसका टोटल टाइम होता है 1 आवर, और आपको इसमें जो है इसे कंप्लीट करना होता है तकरीबन 30 मिनट्स में, या आप कह सकते हो कि 40 मिनट्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स को मोस्टली प्रॉब्लम टाइमिंग की होती है। तो आपने इस चीज को भी ख्याल करना है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है। नाउ वी कैन स्टार्ट बॉडी पैराग्राफ 1। देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंजॉय मोर फ्रीडम। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो है एडवांटेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंजॉय मोर फ्रीडम, आज़ादी के लिए जो है ना चिल्ड्रन को
ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं जिसे वो इंजॉय करते हैं, दे ग्रो अप, वो ज्यादा क्विकली जो है वो क्विकर देन देयर पेरेंट्स डिड। तो यहाँ पे क्या है कि वो एज कम्पेयर टू, अगर पेरेंट्स की निस्बत देखा जाए तो वो ज्यादा क्विक करते हैं, द प्रोडक्ट मोर लिबरल मेच्योर एंड adventurous adult which obviously has an effect on society in the long run। वो long run के लिए जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो मोर लिबरल मेच्योर होते हैं, और वो उनका जो सोसाइटी से इफेक्ट है वो ऑब्वियसली उनको वो लंबे अरसे तक जो है वो लेके चलते हैं। लाओ लाइक ऐसा देखा जाए, टुडे चिल्ड्रन फॉलो द ग्लोबल कल्चर। अगर आज के बच्चों को देखा जाए तो वो ग्लोबल कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, विच इज द एमलगेशन, लाइक इसको आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, कुछ भी ऐसा कह सकते हो कि ऑफ द गुड पॉइंट्स। अगर आप इनका कॉम्बिनेशंस का गुड पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन को देखा जाए, द वेरियस कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो वेरियस कल्चर्स है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसली कंट्रीज प्रोग्रेस मोर रैपिडली, कि जो अगर आप देखे जाए ना, कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो ज्यादा बिल्डअप हो रही है, ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द शेडिंग ऑफ मैनी ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग। क्योंकि जो जितने भी लाइक कह सकते हैं पिछले रस्म रिवाज को, वो जो है आज के चिल्ड्रन उन चीजों को फॉलो नहीं करते। वो जब उन्होंने एज कह सकती हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आजकल के जो चिल्ड्रन हैं वो ज्यादा अपने फ्यूचर को लेके ज्यादा कह लें कि ज्यादा कॉन्शियस है, ठीक है, एज कंपेयर टू अगर पास की बात की जाए तो वो, अगर पास के जो चिल्ड्रन थे वो क्या थे, वो कल्चरल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, लेकिन आज के जो चिल्ड्रन है वो ग्लोबल कल्चर को फॉलो करते हैं। उनके जो पेरेंट्स ने, अगर पास में देखे जाए, उनके पेरेंट्स जो थे वो, उन्होंने लाइक जो भी सब्जेक्ट कह दिया है कि आपने मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है, किसी भी चीज में जाना, वो उनको कह दिया जाता था और उनको वही करना होता था। लेकिन अगर आप अर्लियर अब देखो, अब जो है वो चिल्ड्रन जो है वो मोस्टली आप देख रहे होंगे कि एआई में इन्वॉल्व हो रहा है, गेमिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, कितनी चीजों में जो है ना ऐसे इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप उसको एज अपनी वर्डिंग में भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज पॉजिटिव व्यूज के लिए, ठीक है, लाइक ऐसे ऑफ डूइंग थिंग एंड बिकमिंग फ्रीयर एंड मोर ओपन सोसाइटीज। जैसे इससे क्या होता है कि ओपन सोसाइटी जो है उनको ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो इस चीज को कह सकते हैं फ्रीयर, बिकमिंग फ्रीयर। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो इन इंडिया में कि इफ टुडे यंगस्टर wants a dowry free marriage। अगर आप यहाँ पे देखो इंडिया की अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर यंगस्टर जो है वांट्स अ डॉवरी फ्री मैरिज, अगर वो जहेज लिए बगैर ही फ्री मैरिज करें, ही विल गो हेड, तो वो उनको इसी वो साथ लेके चलेंगे एंड हैव इट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो वो जितने भी जो कह सकते हैं ओल्ड ट्रेडिशन है उस चीज के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। Whereas earlier youngster could not take a stand against it as it was considered customary। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर आप कंपैरिजन करो पास्ट में, तो वो जो यंगस्टर थे वो फॉलो करते थे कि जो उनका ट्रेडिशन होता था, जो कल्चर होता था, उस चीज को फॉलो करते थे। लाइक ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये जहेज का रिवाज था, तो वो उस चीज को फॉलो करते थे। तो ये काफी जो है ना प्रॉब्लम आती थी उनकी लाइफ में, उनकी मैरिज को लेके। लेकिन अगर ऐसे हम पॉजिटिव वे में अब देखें, अगर बगैर जहेज के अगर हम मैरिज करते हैं तो वो हर उस चीज के अगेंस्ट हो जाएंगे जो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको अपने व्यूज में भी देख सकते हो। अपने व्यूज में कैसे आप दे सकते हो कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में बताया था, आप उसको अपने वर्डिंग में भी ले सकते हो कि फ्रीडम हेल्प चिल्ड्रन बिकम कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अगर आप उनके फास्टर मेच्योरिटी की बात करते हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेच्योर का वर्ड था, इसकी बात करते हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि चिल्ड्रन ग्रो अप फास्टर एंड लर्न टू मेक डिसीजन। आप ऐसे भी उसको लेके चल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने अपनी ओपिनियन, अपने थॉट्स देने हैं वहां पे। कैरियर चॉइस, आप ये कह सकते हैं टुडे चिल्ड्रन चूज कैरियर अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपने एज अ पॉजिटिव व्यू देना है। अगर आप यहाँ पे देखें, इन्होंने फर्दर मोर टुडे चिल्ड्रन हैव द पावर ऑफ द इंटरेस्ट एंड द सैटेलाइट टीवी इन देयर हैंड। अगर अब आप
और देखिए तो आजकल के जो चिल्ड्रन है वो ज्यादा पावर रखते हैं, लाइक वो इंटरनेट से कनेक्ट हैं, सैटेलाइट टीवी इस चीज को। टुडे यंग जनरेशन इज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड जनरेशन देन एवर द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अगर आज की जनरेशन को देखा जाए तो वो मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड जनरेशन है, आप पास की निस्बत की बात करें तो। देन नो व्हाट देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डू नो हाउ, जिससे क्या है ना उनके पेरेंट्स को हाउ ना थी ना उनके ग्रैंड पेरेंट्स को हाउ ना थी। ठीक है, जैसे आज के इस बच्चों को देखा जाए तो वो ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व है, इंटरनेट और स्पेशली सोशल मीडिया, सैटेलाइट। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स थे वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे, ना ही उन्हें इन चीजों का पता था। दे हैव कई ना अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ देम, तो उनके सामने जो है वो समुंदर है अपॉर्चुनिटीज का, ठीक है, विच दे वांट टू एक्सप्लोर। तो वो उन चीजों को वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो अडॉप्ट करते हैं कैरियर ऑफ देयर चॉइस, जो भी उनकी चॉइस है। अगर आप कंपैरिजन करो एज अ पास्ट, तो वो जो है उनको इस चीज की भी चॉइस नहीं थी कि वो अपने कैरियर के बारे में क्या करें, क्या चीज सोच ले। जो उनको कह दिया जाता था उन्होंने बस वही करना होता था। डू नॉट हेजिटेट वॉकिंग ऑन द अनट्रोडन पाथ। अब ये टूटे फूटे पाथ नहीं है, वो इस चीज से भी हेजिटेट नहीं होते हैं, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी पाथ है, दे हैव नॉट एफर्ट। वो इस चीज से भी खौफजदा नहीं होते ऑफ टेकिंग रिस्क लेने से भी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस है तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट आपने ये नहीं लिखना कि दोबारा आप उसको फॉर एग्जांपल लिख रहे हो, आप फॉर इंस्टेंस कह सकते हैं। अर्लियर चिल्ड्रन वाज प्रेशराइज्ड बाय देयर parents to take up medical, non-medical or commerce stream, but they today children are going into computer animation, computer gaming and other field। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल देखे जाए कि पहले के जो चिल्ड्रन थे वो प्रेशराइज हो जाते थे, जो उनके पेरेंट्स कहते थे लाइक आप मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, कॉमर्स स्ट्रीम्स में, किसी चीज में भी जो उनको कह दिया जाता था सब्जेक्ट का, वो वही चूज करते थे। लेकिन अगर आप आज के स्टूडेंट्स को देखते हो, आपके आज के चिल्ड्रन को देखते हो, उनके पास कंप्यूटर एनिमेशन है, वो खुद से वेबसाइट बना सकते हैं, वो उनके पास कंप्यूटर गेमिंग है, एनी फील्ड है उनके पास, वो कुछ भी जो है ना वो कर सकते हैं अनहेड ऑफ बिफोर। ठीक है, अगर आप अब नेगेटिव इफेक्ट की साइड पे जाते हैं, ऑन द अदर हैंड सम टाइम दे फ्रीडम, आप उसको एज अ फर्दर मोर भी कह सकते हैं। ऑन द यहाँ पे देर आर मैनी एडवांटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ऑन द वन हैंड भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे लाइक जैसे ऑन द अदर हैंड लिखा है, लेकिन ऑन द वन हैंड यूज नहीं किया था, उसने फर्दर मोर यूज कर दिया था, तो आप यहाँ पे ऑन द वन हैंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेम नहीं करना आपने, वोकेबलरी का भी आपने ख्याल करना है। समटाइम्स देयर फ्रीडम कैन बी डिटरमेंटल फॉर चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन के देखा जाए, दे लाइक मेच्योरिटी एंड फेल टू सी द फॉर रीचिंग consequences of their actions। It also time when teen make mistake and need someone there to guide them, understand what went wrong, take a step backward, analyze, and again take a step forward। Freedom should come in small steps so that the teen are ready to move forward, having proven their ability to handle each small movement। Too much freedom can end them in bad company and also drug। नेगेटिव इम्पैक्ट अब उनसे कैसे पड़ रहा है, अगर हम इसको अपने वर्ड्स में देखें तो लेक ऑफ मेच्योरिटी को कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चिल्ड्रन आर नॉट ऑलवेज मेच्योर इनफ टू हैंडल फ्रीडम, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। आप रॉन्ग डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो दे मे मेक रॉन्ग डिसीजन विदाउट गाइडेंस, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं, मुझे समअप भी करना है क्योंकि टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैम 2 क्लास मिनट्स टाइम कंप्लीट ऑलरेडी। हो चुका है, नेक्स्ट क्लास का टाइम। यस सर, बस 1 मिनट। बैड हैबिट्स, टू मच फ्रीडम कैन लीड टू बैड कंपनी एंड हार्मफुल हैबिट्स। तो आप ऐसे भी इसको अपने थॉट्स में भी इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे, ये तो मैंने आपको एज अ हिंट दिया, आपको इंट्रोडक्शन इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं। ये होता है डिस्कशन बेस्ड ऐसे। होप